Okay. Can you see the screen here? Can you see the screen? Okay, fine. So today we are going to start with the topic 11 number. Okay. Wait, 11 से पहले मैं आपको करा दूं 10 number. Thermal properties of matter. नहीं, thermal properties करना है. नहीं, we will do first that one. 11 number. Okay. Fine. Okay, sir. Yes. So just give me a moment. I'm going to start with you. Hold a moment. Okay. So Meenakshi, this is our topic, thermal or heat energy transfer. So heat energy transfer कैसे होता है? Do you know that? Any idea? No, sir. Okay. So I will just let you know. Give me a second. I'm just going to show you. In transfer of heat, we have three methods. What we have? Three methods, which I'm going to show you right now. Can you see this? Can you see this? Yes, sir. There are three methods. One is convection. Okay, sir. This I know. You know that, right? Yes. So what is conduction, convection, radiation? You tell me. Sir, conduction is when heat transfer from the substance, यानी कि metal से, like when we heat some metal on the gas stove and then we touch it, heat is transferring from where the heat amount is more from where the heat amount is less. Right. The Okay. heat is traveling from more heat place to the cold one, and convection is where heat travels up and it moves in a cycle, like No, hot no, no. air, It's not like that. like It's not like जी that. I will. It's not like that. sir, I will like tell you. हीटर होता है तो फिर मतलब जब हमारे रूम गर्म होने लगता है तो जो नीचे एयर होती है वो गर्म हो जाती है, फिर वो राइज अप करेगी, फिर ऊपर से ठंडी एयर आके नीचे वाली जगह ले लेगी, फिर हीटर उसको गर्म करेगा, फिर वो फिर से राइज होगी. Right. अभी सही आंसर आया. Okay. And what about the radiation? सर रेडिएशन मुझे याद नहीं है, कंडक्शन कन्वेक्शन याद है. Okay. 8th में किया था ये हमने. Okay. So सबसे पहले हम देखेंगे what is heat transfer. हम क्या देखेंगे? What is heat transfer? So I'm just uploading it. So आप एक काम करो, which I will underline. You have to make a note. आप copy पे note down भी करोगे. So just take out heat transfer. Basically क्या होता है? Exchange of thermal energy. क्या होता है ये? Exchange of thermal energy due to the temperature difference. Due to what? Temperature difference. Suppose that we have ice. What we have? Ice. And we have a glass of water or a glass of juice, whatever, right? So if I will put the ice into the glass of water, so what will happen? There will be a transfer of energy or not? There will be a transfer of energy, right? Yes. Because आइस का जो टेम्परेचर रहता है वो -4 डिग्री सेल्सियस और इसका जो टेम्परेचर रहता है मान लो 18 और 20 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ वाटर आई एम टॉकिंग. So if we will put inside them, so what will happen? They will start transferring the energy. अब यहाँ एनर्जी किसके बीच ट्रांसफर होगा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. किसके बीच ट्रांसफर होगा? Hot body to cold body. You can see the direction here.
सो ऑलवेज याद रखना हीट ट्रांसफर जो होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, करेक्ट? Is that clear? Yes. Okay, so this is due to basically temperature difference, or you can see the heat energy move faster, molecule with less energy move slower, right? So Yes. just make ऊपर का 3 लाइन नोट कर लो और ये भी नोट कर लो, heat energy transfer from hot body to cold body. Make a note of this fast. We're done. Okay. Fine. Give me a moment. Moving ahead. ठीक है, so we can move. So for transferring of heat we have 3 methods, that is known as conduction, convection and radiation. First of all we will look for conduction of heat transfer. Okay, so I'm just taking the image and then I will let you know. Give me a moment. कंडक्शन आपने सही बोला था कि हम मेटालिक बॉडी को ऊपर रख देते हैं फिर हीट देते हैं, तो लेकिन आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, मेटालिक बॉडी जो थी यहाँ पर इसके साथ हीट इसको मिला, नीचे से क्या मिला? हीट इसको मिला, राइट? अच्छा, ये हो गई, मान लो कि आप चाय या दूध गर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, राइट? आपने देखा होगा ये वाला जो पोर्शन होता है राइट में, जो ये डंडी होती है, आज के डेट में प्लास्टिक की आ गई है, राइट? यस। क्यों प्लास्टिक की क्यों आ गई है? व्हाट इज द क्योंकि रीजन? सर प्लास्टिक जो होता है वो नॉन मेटेलिक होता है और वो कंडक्ट हीट नहीं करता, तो जो हीट है वो मेटल बॉडी से प्लास्टिक पे नहीं आगे बढ़ती है क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है हीट का। यस, सो ऑलवेज याद रखो। अच्छा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर वी हैव अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। व्हाट वी हैव? फिजिकल कॉन्टैक्ट, तभी ये टेम्परेचर इधर जा रहा है, अदरवाइज ये टेम्परेचर इधर नहीं जाता। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। Okay, I will give you one more scenario of the conduction. Just give me a second. Just give me a moment, please. In this case, you can see the left hand side is we are providing the heat, correct? Yes. Left hand side हम क्या कर रहे हैं? Heat provide कर रहे हैं. Right hand side ये heat, पहले क्या होगा? पहले ये molecule गर्म होगा, फिर एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर एनर्जी इधर, फिर एनर्जी इधर, एनर्जी इधर. So energy is jumping. Can you see that? Yes. Energy is
jumping, and the energy is transferring from this direction to this direction. Right? Can you see that? Yes, sir. Okay. So when you see this kind of movement, so you can easily understand that there should be a physical contact. There should be what? Physical contact. अगर वो physical contact नहीं है, then वो different type होगा. But conduction में क्या जरूरी है? There should be a physical contact. Then it will transfer the heat. Is that clear with you? Yes, sir. So please आप इसका definition लिख लो. And for conduction, we need best conductors. We need what? Best conductors. Conductor. So you can see here in this picture, मैंने best conductor की list बनाई है. Can you see that? Yes. Okay, so here you can see how glass wool is the worst conductor, rubber wood. Correct? Can you see that? Yes. कोई दिक्कत है इसमें? No. Okay, so just give me a moment. I would like to make you some interesting parts here. एक सेकेंड रुकिएगा. Just a moment. Meenakshi, I would like to share something with you. Okay. Can you see this? Can you see this? Yes. Okay. अभी यहाँ पर नहीं. देखो सिंपल सा लिखा हुआ है कि हीट टेम्परेचर. ओके, ये सब पे बात नहीं करते हैं. इन सब की जरूरत फिलहाल नहीं है. Conduction, convection, radiation are the three process. Now, this is what is happening, Meenakshi. What is happening? अगर नीचे से हीट देंगे, so they have a physical contact, right? Yes. ये देखो, ये हमने इसमें एक नॉन स्टिक तवा था. ये सब जो हो रहा है, ऑमलेट बना रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बना रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडक्शन राइट नाउ. So this wait. This process is what? This process is what? Conduction process, right? Am I right? Yes, sir. रोटी, घर में रोटी बनती है ना? Yes. रोटी कैसे बन जाती है? क्या करते हो रोटी के लिए? हम पहले उसको क्या बोलते हैं? आटा. हाँ, बेलते हैं, राइट. फिर उसको हम उस पे गैस स्टोव के ऊपर वो रखते हैं. तवा रखते हैं, राइट. तवा रखते हैं, फिर उसको ऊपर रख देते हैं. करेक्ट. फिर इसके ऊपर रोटी रखते हैं, तो गैस स्टोव से जो हीट आती है वो उसकी तवे को गर्म करती है पहले, और फिर तवा रोटी को करता है. और ये सारा कुछ फिजिकल कांटेक्ट से होता है. अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा, अगर मान लो जो आपने बेला है उसको तवे से ऊपर रख दो, तो क्या वो पकेगा? क्या नहीं पकेगा. तो आपको पकाने के लिए उसको फिजिकल तवे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, राइट? लाइक दिस पिक्चर, राइट? जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आएगा तो आपकी रोटी पक जाएगी. करेक्ट. So that is the process is known as conduction. Do you clear with that? Yes. Okay, fine. So conduction clear hai? So you just write down the definition. Conductive heat transfer happens when two solids touch each other or there is a physical contact. You note down the definition.
नोट हो गया? Yes, sir. Shall we move? Hmm. Okay, fine. Just give me a second. Give me a second, please. Now I'm going to tell you. Next हमारा जो टॉपिक है इसमें, that is called known as, ये सब तो क्लियर है, that is known as convection. That known as what? Convection. Okay. So I would like to show you something. Just a moment. कन्वेक्शन का वैसे भी आपने मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है ऑलरेडी, so I would not tell more in this. Okay, so I will just copy. Are you able to see this one? Yes. So convection में क्या है? The process of heat is carried from one place to another by bulk movement of fluid. By bulk movement of fluid. सबसे पहले क्या होगा? नीचे के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे, right? So they will try to what? They will try to move up. और ऊपर का मॉलिक्यूल क्या रहेगा? ठंडा रहेगा. So they will try to go down. मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि नीचे के जो गर्म मॉलिक्यूल्स है, हॉट मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर क्यों चले जाते हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे क्यों आ जाते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि जो गर्म मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज लाइटर देन द कोल्ड वंस, तो वो धीरे धीरे करके ऊपर उठने लग जाते हैं और कोल्ड वन नीचे बैठने लग जाते हैं. Correct. तो वो उसको रिप्लेस कर लेते हैं. Correct, good. So this process is due to the movement of what? Due to the movement of fluid, right? So that's why we called it as. अब होता क्या है इसमें कि एयर जो वाटर जो गर्म होगा उसकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाता है, सो इट बिकम्स लाइटर, राइट? लाइटर होने के कारण वो मॉलिक्यूल ऊपर चला गया और जो ऊपर के मॉलिक्यूल होते हैं दे बिकम्स हेवियर, सो हेवी मॉलिक्यूल्स विल कम डाउन, एंड व्हेन द हेवी मॉलिक्यूल्स विल कम डाउन they will again heat up and they will move up, right? So this process is known as what? This process is known as convection. In this process, do we need a physical contact? No. We do not need any physical contact. So what kind of contact we need? We need a fluid contact. We need what? A fluid contact. Is that clear with you? Yes, so कुछ sir. पॉइंट्स हैं, प्लीज मेक अ नोट, आई विल लेट यू नो. मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिखो. Shall I tell? Yes. लिखो इसमें initially molecules at the lower end of fluid clear, molecules at the lower level of fluid gets heated. Gets what? Gets heated. नोट डाउन कर लिया? हाँ जी सर. Then the density decreases and it becomes light. Then density decreases
Noted? Hello? Hello, Yes, sir. have you noted? Yes, sir. Okay, so lower molecules get density less, so it's weightless, lighter. Here, therefore, the molecules will move up. Molecules will move up. Can you hear me? Yes, sir. Noted? Yes. तो क्या होता है कि नीचे से ऊपर गया and then the heavy molecules which is at the up will come down. जो heavy molecules होते हैं वो नीचे आ जाएंगे. Done? हाँ जी sir. Okay. So this is the process which is known as convection. Okay. So convection में हम कुछ चीज और देखेंगे यहाँ पे. Okay. I'm just giving you. Convection current एक होता है. Okay. So can you read this portion, please? Convection Yes, sir. current. Convection currents at work. Convection currents help to share energy between warm and cold places. If you're sitting in a room with an electric heater, energy will be moving around the room from the heater as a result of convection currents rising from the heater. You are likely to be the source of convection currents yourself since your body is usually warmer than your surroundings. Many biting insects make use of this effect. For example, bed bugs crawl across the bedroom ceiling. They can detect a sleeping person below by finding the warmest spot on the ceiling. Then they drop straight down on the sleeper. This is a lot easier than crawling about on the top of the bedding. Cold objects also produce convection currents. You may have noticed cold water sinking below an ice cube in a drink. In a refrigerator, the freezing surface is usually positioned at the top and the back so that cold air will sink to the bottom. Warm air rises to be retrieved. Okay. So do you understand how the convection current works? जी sir. Okay. ठीक है. So we can move forward. I will just want to share something more in this, so it will give you the practical scenario. Okay, now we have convection. ये देखो convection में जो molecules देखो कैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, right? देखो और Yes. ऊपर के molecules नीचे की तरफ आ रहे हैं. Can you see? So this Yes, will sir. happen in convection. इस पे कुछ और भी दिखाएगा. Give me a second. ये देखो कैसे molecules ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे. Can you see that? Yes. ये देखो. सर ये क्या हुआ? हाँ? ये क्या हुआ? Give me a second. ये लाइट होके उड़ने लग गया. ये चीज क्या है? ये मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है.
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज जब लाइट हो जाएगी तो ये हवा में उड़ेगी, राइट? एंड आई थिंक ये सम प्लास्टिक जेली टाइप का है कुछ। ओके, अब ये देखो सिंपल सी बात, इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब ये हल्का हो गया तो देखो ऊपर उड़ने लगा, राइट? गर्म था तो ये हल्का था, जब ये ठंडा हुआ तो ये हेवी हो गया, राइट? और हेवी होने के कारण ये पार्टिकल वापस से नीचे आकर देखो बैठ जाएगा। कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके, अब ये देखो, इसमें से देखो, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? और वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर गया, और ये देखो ये राजमा है शायद, इस कैसे कुछ राजमा ऊपर जा रहे हैं, कुछ राजमा नीचे आ रहे हैं। कैन यू सी? Yes. आई विल जस्ट शो यू दिस पिक्चर। यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ जा रहे हैं ऊपर, कुछ नीचे आ रहे हैं। कैन यू सी दैट? सो इसी Yes. तरीके से करंट भी तेज स्पीड में, अब हमारी आई से तो दिखेगा नहीं, बिकॉज इट विल मूव वेरी फास्ट। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट टू डू इट, टू चेक इट। नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं एंड हाउ इट्स मूविंग। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Okay, fine, give me a moment, just a second, I will take a little water. Okay, रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा वाटर चाहिए। Yes, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Okay, चलिए। So दो चीजें अभी हमने देखी हैं। We will move forward. Okay. We are going for radiation. Okay. So एक मिनट होल्ड करो, रेडिएशन की मैं फोटो लगाता हूँ। रेडिएशन मेरा सबसे फेवरेट है। I will just show you the radiation picture. Oh. Can you see this picture? Yes. इसको कहते हैं रेडिएशन। क्या है ये? रेडिएशन। ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। अंडरस्टैंड? Yes. सो रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट है क्या?
इसमें कोई नहीं फिजिकल, सर। अच्छा नो इसमें किसी फ्लूइड का कांटेक्ट है क्या? नो, फ्लूइड वेव्स का का भी, है इसमें। इसमें वेव्स का है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? So you यस can see the radiations are not visible. Invisible का मतलब क्या हुआ? Not visible to eye, not affected by airflow. आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो पंजाब, दिल्ली, इन सब में ठंड के टाइम में लोग आग तापते हैं, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उलाओ, क्या बोलते हैं? हेलो, सर बॉनफायर। हाँ वो तो बॉन फायर तो इंग्लिश का नाम हो गया ना, अमीरों का नाम हो गया। जो बेचारे गरीब हैं वो ठंड में क्या करते हैं? लकड़ियां जलाते हैं। लकड़ियां जलाते हैं, उसको आप बॉन फायर कर लेते हो। हैं, गांव में जाओगे तो बॉन फायर तो रोज करते हैं सब लोग। हम्म, यस। करते हैं ना? हाँ, तो बॉन फायर जो है आपका, बॉन फायर तो आप जाते हो कहीं वहां जलाते हो, राइट? और गांव में तो बॉन फायर रोज होती है जी, ठंड के टाइम में, ठीक है? क्योंकि हम तो तो हीटर चला लेते हैं। हीटर चला लेते हैं, राइट? सो गांव में तो हीटर बिजली है नहीं, राइट? तो क्या यस, करेंगे बेचारे, वो वो एक बॉन, लकड़ियां ऐसे, कई वो पुराने जमाने में स्टोन से ऐसे आग भी लगाते थे। राइट, करेक्ट। सो ये देखो, ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में अभी भी आप मैं एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ। जो आप ये जाते हो, ये देखो, मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, होल्ड करो। कैन यू सी दिस इमेज? कैन यू सी दिस? यस ये यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, नहीं राजस्थान में शायद ज्यादा नहीं होता होगा, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठंड में अर्ली मॉर्निंग आप ऐसा हाल देखते हो रोड पर, या कहीं कहीं पे लोग लकड़ियां जला के बैठे रहते हैं। और ये कब होगी? ये भी दिसंबर आ गई ना, ये 25 दिसंबर से लेके 10-15 जनवरी तक ऐसा सीन रहेगा। डू यू नो दैट? यस सर। वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी सर, शीतलहर बोलते हैं हम लोग, हिंदी में तो शीतलहर बोलते हैं, जो विंटर वेकेशन बच्चों को मिलती है ना, राइट? उसमें तो आप छुप जाते हो कंबल में और सब में, रजाई में, करेक्ट? लेकिन जिसे सुबह सुबह काम पे जाना होगा, बेचारा कैसे जाता होगा, सोचो। तो ये इस तरह की आग वगैरह जलती रहती है, तो वहां बैठ के वो सेक लेते हैं, राइट? सो यस अब ये देखो, सिंपल सी बात है, ये क्या, ये इन्होंने आग में अपने अपने हाथ डाल दिए हैं क्या? नहीं। और कोई भी वो लकड़ी पकड़ के बैठा हुआ है क्या कि हाँ पकड़ूंगा तो हीट मेरे पास आ जाएगी? नहीं ना, देखो सब दूर खड़े हैं, दे आर एट सम पार्टिकुलर डिस्टेंस, देखो सबके पास एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखे हैं। कैन यू सी दैट? तो ये जो यस हीट है उन तक कैसे पहुंच रही है? ड्यू टू द रेडिएशन, ड्यू टू व्हाट? रेडिएशन, राइट? कैन यू सी दैट? यस सर। हाँ, तो रेडिएशन वगैरह तो हमने बाद में सर पढ़ा। लेकिन रेडिएशन मूव कैसे करती है कि पहले वो एक को एक उसको पार्टिकल्स को धक्का मारती है, मतलब पुश करती है Yes, it's like a जैसे वॉइस waveform. जाती है। Yes, it's like a waveform. It's like what? Waveform. Simple सी बात है, जो यहाँ, okay, I will use a green pen. Give me a moment. जो यहाँ पे जो molecules रहेंगे, they will be heat up. इन molecules का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, right? यस। आपके घर में ओवन है क्या? ओवन, ओवन है ना? यस। अच्छा, देखो मैं बोल रहा हूँ बट ये करना मत, लेकिन ये आपका ओवन हो गया, राइट? ओवन किस लिए यूज करते हो, बताओ? सर अगर कोई भी चीज आपने बेक करनी है या कुछ गरम भी करना है, राइट, कुछ तो गरम भी करना है, तो जैसे कि पिज्जा वगैरह लाए या कुछ रोटी वगैरह गरम करनी है, तो अंदर में रखा और गरम कर ली, यस करेक्ट? यस मैं बोल जरूर रहा हूँ बट प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को मत करना घर पे, हाथ जल जाएंगे। आप जब इसको निकाल, जब ये गर्म हो जाती है, राइट, तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? अंदर का टेम्परेचर हाई रहता है, यस।
ओवन के अंदर का टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, राइट? Yes. हाँ, सो दैट इज ओवन के अंदर भी रेडिएशन का ही वर्क होता है। ओवन के अंदर भी क्या होता है? रेडिएशन का ही वर्क होता है। अंडरस्टैंड? Yes. राइट, गिव मी अ सेकंड। I would like to show you something. Give me a moment. Okay. Are we able to see something here? Yes. ये देखो, इसमें ये पीछे तो छोड़ो, अरे यार ये कैसे, ये देखो, यहाँ देखो, ये अंदर में इन्होंने सामान डाला, राइट? पानी वगैरह जो भी डालना है उसमें डाल दिया, and now you can see how the temperature is rising. Can you see that? Yes. अंदर का टेम्परेचर राइज हो जाता है इस केस में, राइट? One more thing, यहाँ I will just show you. This is the ad coming. Give me a moment. Yes. In this one, they will show you how the oven will work. Okay. ये बात बहुत कर रहा है। रेडिएशन से देखो कैसे वर्क कराते हैं ये। ओके, ये बहुत ज्यादा बात कर रहा है, हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना। Where is that radiation? अरे यार इसे तो बेवकूफ बना दिया मैं। Give me a second. Give me a moment. Can you hear me? Yes, sir. एक सेकेंड, I think have they used it? No, they have not. Yeah, sorry, can you hear me? Yes. Okay, ओवन का इसमें शायद नहीं दिखाया हुआ है, I will show you later. So ओवन में भी क्या होता है? There is a radiation, right? And with the help of radiation, they work inside it. पूरा का पूरा जो अंदर का टेम्परेचर रहता है वो हाई हो जाता है। So मेरी रिकमेंडेशन है कभी भी हैंड्स वगैरह आप उसे मत डालो। What it? Okay. रेडिएशन से कुछ और भी बातें हैं, so I will share with you. So just give me a second. How they works and all. Can you see here? यहाँ देखो, इसमें क्या है? They what they have written. The light that reaches us from the sun and other star, that is form of electromagnetic radiation. This radiation travels as a form of electromagnetic waves, right? तो जो ये लाइट होती हैं वो क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रहती हैं, correct? Earth is bathed in other forms of radiation from sun. The hotter an object, the more infrared radiation it gives out. Make a note, please. This sentence. जो सबसे हॉट ऑब्जेक्ट होगा वो इंफ्रारेड रेडिएशन करेगा। अब एक बात बताएं, अभी कोरोना के केस में आपने सुना होगा दिल्ली पे टेम्परेचर मेजरमेंट की मशीन लगी है, राइट? कैन यू हियर मी? मैंने नहीं सुना। हाँ, एयरपोर्ट्स पे लगी है टेम्परेचर चेक करने के लिए लोगों का। हाँ जी। अच्छा, नहीं मालूम? नहीं सर। अब एक एक आदमी को पकड़ के कैसे वो चेक करेगा? तो ऐसे एक गेट के ऊपर उन्होंने मशीन लगाई होगी। yes. ऐसे जब लोग जा रहे होंगे तो 2 मिनट खड़े रहो, टेम्परेचर चेक। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं जी, रुको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। Give me a second. Give me a second.
Give me a second, I will just show you. हाँ जी, ये रहा. रुको 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 रुको. हाँ, can you hear me? Yes. मैं अभी दिखाता हूँ. Can you see this? Yes. ये देखो, ये पिक्चर दिख रही है आपको? इस पिक्चर में इस टीवी पे देखो, इस टीवी पे देखो. Can you see the TV? Yes. अब ये देखो, इसमें टीवी में ये ओरिजिनली ये आदमी आ रहा है, ये आदमी, ठीक है? ओरिजिनली कौन है ये वाला आदमी है. ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये दोनों लोग, ये दे आर ऑफिशियल्स, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स, राइट? अब ये जो आदमी इधर से चलता हुआ आ रहा है, तो इसको पकड़ पकड़ के तो नहीं पकड़ेंगे टेम्परेचर नापो. अभी मॉल्स वगैरह में टेम्परेचर नापने का वही तरीका है, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है. बट एयरपोर्ट पे बहुत जगहों पे ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो गए हैं कि आप चलते आओ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. दे विल लुक हियर, दे विल लुक वेयर? हियर. कैन यू सी दैट? यस. ग्रीन 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 आएगा, मतलब आप ओके हो. अगर इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इमेज दिखता है, आई विल जस्ट शो यू. ये देखो, ये इमेज देख रहे हो आप? ये इमेज में देख रहे हो, ये वाला पहला इमेज जो है वो बहुत रेड है. कैन यू सी दैट? मतलब कि वो हीट ज्यादा है, हीट अप ज्यादा है. जहां जहां पे रेड होगा वहां वहां हाई एनर्जी, हाई हीट. जहां जहां कम होगा, ग्रीन वो सबसे कूल, येलो थोड़ा एनर्जी, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? इसको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन से वो चेक करते हैं. तो इंफ्रारेड रेज होती है, वो इस पर डाली जाती है बॉडी पर. बॉडी पर जैसे ही डालोगे तो वो क्या करता है, वो कैचअप करता है कि हाई एनर्जी कहाँ है, तो वो रेड हो जाता है. करेक्ट? सबसे ज्यादा एनर्जी देखो ये होती है, इस तरह की ना मशीनें लगी होती है, इंस्टॉल कराई जाती हैं जगहों पे, ठीक है? और लोग जैसे जैसे वहां से क्रॉस करेंगे उनका इमेजिंग किया जाता है. क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? इमेजिंग. देखो ये थर्मल स्कैनर है, ये देख रहे हो आप? मैं ये रब कर देता हूँ. ये ऐसा लगेगा कि कैमरा शूट कर रहा है कोई, बट ये स्कैनर होते हैं. क्या होता है ये? स्कैनर. कैन यू सी? ये स्कैनर क्या करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करता है. देखो ये आपकी बॉडी है ना, इस पूरी बॉडी का ये टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा. जहां जहां हाई हीट रहेगा वहां वहां रेड दिखाएगा, जहां जहां टेम्परेचर कम रहेगा वहां वहां ग्रीन और येलो दिखाता रहेगा. कैन यू सी दैट? यस. ओके, आई विल शो यू सम मोर इन दिस. सो ये देखो, कैन यू सी? ये तो कोरोना वायरस का दिखा रहे हैं. ओके, ये देखो ये आदमी का है पूरा, ठीक है? और भी देखो. सो यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे दिखा रहा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाई एनर्जी है, हाई टेम्परेचर है. ये देखो स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, सब कुछ ग्रीन है, जाने देंगे, ठीक है? बेसिकली ये वीडियो कोरोना कोविड के लिए बना था, बट मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको देखो ये एयरपोर्ट पे कैसे लोग चलते जा रहे हैं, राइट? और यहीं कहीं पे स्कैनर लगा हुआ होगा, लोगों को पता भी जल्दी नहीं चलेगा कि स्कैनर से स्कैनिंग हो रही है उनकी. देखो पूरे बॉडी का ना ये स्कैनिंग करेंगे. अब देखना पिक्चर में, ये देखो, ये देख रहे हो? ये सब ये येलो में है, ये रेड में है पूरा, और यहाँ पर देखो टेम्परेचर बताएगा. कैन यू सी इन द राइट हैंड साइड? यस. राइट हैंड साइड में टेम्परेचर का डिग्री है कि जी इससे ज्यादा ऊपर गया तो पकड़ लो उसको जल्दी से, फीवर होगा उसको तो. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट. देखो यहाँ पे बहुत से लोग इसमें देखो, ओरिजिनली एयरपोर्ट पे ऐसे खड़े रहते हैं लोग, राइट? उनकी इमेज जो स्कैनर में आती है वो ऐसे आती है. देखो ग्रीन ग्रीन सिर दिख रहा है आपको? सर देखो, ग्रीन ग्रीन सर दिख रहा होगा, है ना? अब इसमें से जो जिसका सिर रेड दिखेगा उसे पुलिस CI वाले पकड़ लेंगे इंडिया में, बोलेंगे आ जाओ कोरोना टेस्ट करेंगे आपकी. हाँ, क्या चीज? ये तो बड़ा मस्त है. क्या चीज? बोल रहे हो कि ये तो सही स्कैनर है. हाँ, नहीं इंस्टॉल किया गया है. अब एक एक आदमी को कैसे कोई जांचेगा, राइट? तो ये थी बात तो कोरोना के लिए, बट हमारे स्टडी के लिए क्या था? रेडिएशन. वो जो बॉडी है, ये देखो ये जो बॉडी है इंसान की बॉडी, अगर वो गर्म होगी, इफ इट हैज अ हीट, सो इट विल रेडिएट द एनर्जी.
जो रेडिएट करेगा वो रेड कर लेगा स्कैनर जो हमारा टीवी जो लगा हुआ है। कैन यू सी दैट? ये देखो इसमें भी वही चीज है। ये देखा होगा ना मशीन बहुत सी जगहों पे लगा के, मॉल वॉल गए होगे तो सब लगा के चेक कर रहे होंगे, आपको गए हो चेक किया है? हाँ। सो दिस इज द इंफ्रारेड बेस्ड ऑन इंफ्रारेड। ये बेसिकली कोविड के लिए वीडियो था, बट आई हैव शोन यू बिकॉज आप इसको देख के ये समझ सकते हो कि थर्मल स्कैनिंग क्या होती है, हाउ इट शोज रेड। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ओके, सो नोट डाउन कर लो ये point that hotter an object, more infrared radiation it gives you out. You can use this idea to help doing a bit of detective work. अब देखो अच्छा, प्रीडेटर मूवी देखी है क्या? कौन सी? प्रीडेटर। नहीं। नहीं देखी? नहीं देखी नहीं है? सर, नहीं सर। Give me a second. I'm going to show you. एक बार रुक जाओ। ये वाली मूवी नहीं देखी? नो सर। क्यों, डर लगता है? सर नहीं, मुझे ऐसी फिल्म पसंद ही नहीं है। ऐसी फिल्म नहीं देखना। ओके, ये एक्चुअली ना ये मूवी एलियन पे बेस्ड है। ओके, एलियंस में ये मूवीज देखता हूँ। ये मूवीज जो है वो एलियंस पे बेस्ड है। अब एलियंस को जो दिखता तो है नहीं, एलियंस को क्या है, दिखाई नहीं देता। ओके, इस मूवी में क्या बनाया है कि ये जो एलियंस होते हैं ना, इनकी आंखें जो है वो देख नहीं पाती। तो ये क्या देखती हैं जी? ये देखता है आपकी बॉडी का हीट। क्या देखेंगे ये? आपकी बॉडी का हीट। अगर इनको हीट दिखाई देगा तो ये क्या समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग जा रहा है। क्या समझते हैं? कि ह्यूमन बीइंग जा रहा है। ह्यूमन बीइंग जा रहा है। और अगर देखो मैं एक फोटो भी दिखाता हूँ, इनको ऐसा दिखता होगा। आ जाओ जल्दी से। यस, कैन यू सी? कैन यू सी दिस? यस। ये अपने भाई बंधुओं को ऐसे खोजते हैं। कैन यू सी दैट? यस। इनको तो दिखाई देता है नहीं जी, राइट? तो ये देखते हैं जी किधर किधर रेड रेड। तो मतलब अगर इस तरह की फोटो दिखेगी ना इनको, इनके आंखों में स्कैनर लगा होता है, ठीक है? तो ये क्या सोचते हैं कि जी ये स्कैनर है तो मतलब ये ह्यूमन बॉडी होगा, राइट? और अगर ऐसा नहीं बना, रेड रेड नहीं आया, तो समझते हैं ह्यूमन बॉडी नहीं है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। डू यू क्लियर दैट? यस। तो ये सब मूवीज देखोगे तो वहां से अपने आप मालूम हो जाएगा। So they are based on infrared सर मुझे radiation. एक डाउट है, रेडिएशन मुझे हाँ, समझ बोलिए। नहीं आया। रेडिएशन समझ? जैसे कन्वेक्शन ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है फ्लूइड में, राइट। वैसे रेडिएशन क्या साइड में मूव करता है? नहीं, साइड में नहीं, रेडिएशन चारों तरफ मूव करता है। रेडिएशन अगर चारों, किसी ऑब्जेक्ट से दूर से हीट आ रही है, मतलब कि वो चारों तरफ उसकी हीट जा रही है और वो रेडिएशन हो रहा है, और साथ में उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लूइड है कि नहीं? क्योंकि एयर तो फ्लूइड हर से, जगह पे एक है। मिनट, फ्लूइड से क्या मतलब है? ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? ये अपनी लाइट चारों तरफ फेंकेगा ना, तो ये लाइट जो है वो हीट एनर्जी चारों तरफ फेंक रहा है, बस। और सर ये जो आपने ये ऊपर पढ़ा था ना, एक बारी वो खोलना। ये वाला? नहीं, ऊपर कन्वेक्शन का। ओके, यस। ये है। हाँ, तो इन्होंने रखा है कि ये एक मुझे आइस क्यूब वाला एग्जांपल भी नहीं समझ आया और बाइटिंग इंसेक्ट वाला भी नहीं। कौन सा इंसेक्ट? ये बाइटिंग इंसेक्ट लिखा है ना, मैनी बाइटिंग इंसेक्ट मेक यूज ऑफ दिस इफेक्ट। कैसे यूज करते हैं वो इफेक्ट? ओके, पहले तो मैं ये समझाता हूँ। ये आइस आइस वाला समझ में नहीं आया था? नो। अच्छा, कभी आइस मिलाया है अपने जूस में, यस। कोल्ड ड्रिंक में? यस। क्यों मिलाते हो? ताकि जो वो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडी हो जाए।
कोल्ड ड्रिंक कैसे ठंडी होगी? क्योंकि जो आइस है वो हम्म। बाहर से हीट एनर्जी अंदर लेगी एक और मिनट, वो आइस एनर्जी को खींचेगा अपने पास, राइट? हाँ यस वहाँ किससे पे खींचेगा एनर्जी को? कोल्ड ड्रिंक से कोल्ड ड्रिंक से। तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर ज्यादा था पहले, तो जब वो आइस उससे एनर्जी खींचेगा तो कोल्ड तो ड्रिंक फिर का ठंडा हो टेम्परेचर जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। कोल्ड ड्रिंक से आइस में जा रहा है ना। कोल्ड ड्रिंक से आइस में गया, राइट? और आइस को हीट मिला, दैट्स व्हाई वो गल गया। सर नहीं, ये वाला आइस का नहीं, उसमें वो फ्रीजर वाला कुछ दिया था। फिर यहाँ कहाँ पे? सर उसी में, इसमें यहाँ पे। कन्वेक्शन में। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। कन्वेक्शन करंट हेल्प टू शेयर द एनर्जी बिटवीन वार्म कोल्ड प्लेस। यहाँ पे देखो, इन अ रेफ्रिजरेटर द फ्रीजिंग सरफेस इज ओके, मैं बताता हूँ। इफ आई सिटिंग इन रूम, ठीक है, वार्मर, मेनी बाइटिंग इंसेक्ट्स use this effect. Okay, for example, bed bugs crawl across the bedroom ceiling. They can detect the sleeping person below, finding the warmest spot on the ceiling. Then they drop. But this is not easy to crawling. ये मुझे भी समझ नहीं आया what they have told. I need to check for it. ये क्या एग्जाम्पल लिया है ये मुझे भी क्लियर नहीं है. Okay. In a refrigerator, freezing surface is just position at the top and the back. ये तो मैं देख के बता दूंगा आपको, ठीक है? Don't worry, I will tell you about it. अभी तक ये क्लियर है ना? What is convection, conduction, radiation? यस ये इसमें क्लियर है, राइट? ठीक है, तो मैंने कुछ आपको इमेजेस भी दिखाए हैं कैसे क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो अभी आप इतने पे रखो। When I will return, okay, या फिर हो सकता है मैं वहां जाऊं तो वहां से भी मैं आपको कॉल करके बोलूंगा कि we can do the class. First I will check the situation. क्या सिचुएशन है सर वहां आप हॉलीडेज दे रहे हो कुछ दिन की? पे? Yes, कब तक? till 15th of December. ओके। You can do the chemistry class if you need. Okay. केमिस्ट्री क्लास में मैम ने बोला कि 7 दिसंबर तक मैम ने भी हॉलीडेज दी है। Okay, ठीक है, तो आप एक काम करो, 15 दिसंबर तक मेरे साइड से भी हॉलीडेज हैं बिकॉज मेरे ब्रदर की शादी है। ओके, सो आई एम, लेकिन उस बीच में वहां जाऊंगा। आई विल चेक दैट इंटरनेट इज वर्किंग देयर, क्योंकि मैंने बोल रखा है इंटरनेट के लिए वहां पर, बट मुझे भरोसा नहीं है। आई हैव टू चेक दैट। ओके, सो मैं एक बार चेक करूंगा, देन आई विल कॉल यू। तब तक आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम कब से हैं? सर जनवरी फर्स्ट वीक। हाँ, तो रिवीजन स्टार्ट कर दो मैथ्स का। मैथ्स फिजिक्स रिवीजन शुरू कर दो जी, ठीक है? सो यू हैव द हॉलीडेज, सो गो फॉर रिवीजन। मेरे पास बस ये तीन चैप्टर बच रहे हैं, राइट? सो मैं आके तुरंत फिनिश कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ओके, और ये तीनों थ्योरेटिकल भी हैं, न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है। मैंने चेक किया है, न्यूमेरिकल बहुत कम है, 1-2 न्यूमेरिकल होंगे हार्डली, ठीक है? सो आप न्यूमेरिकल्स पे वर्कआउट करो। इसका तो मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ठीक है सर। यस ओके, बाय, टेक केयर। बाय सर।